Question number 7th, third part. X upon a minus y upon b equal to 0. Now students, as I told you earlier, whenever the coefficients are in fractions, try to solve it, try to simplify it. So what we have, when you solve it further, the LCM of this comes to be a into b. So when you divide ab by a, what you get? B into x minus a into y equals to 0. So what we have? Bx minus ay equal to 0 into ab is remains same, that is 0. So this is our first equation. Understand students? अब हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है? That is ax plus by equals to a square plus b square. Now students listen, look here. यहाँ पर ऑलरेडी जो कोफिशिएंट है वो a और b की फॉर्म में है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है. So now you can solve these two. Now here the coefficient of x is a and here it is b and it is a. To make the coefficient same, either we have to multiply this whole equation by a and this is by b, so that यहाँ भी a भी आ जाए, यहाँ भी a भी आ जाए, या इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो b के साथ और इसको a के साथ, तो ये आपकी मर्जी है. ठीक है. सो मान लो हम इसको सेम करते हैं. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय a एंड इक्वेशन सेकेंड बाय b. इसको हमने a से किया, ये क्या आ जाएगा? ab. इसको b से क्या करेंगे तो क्या आएगा? ab आ जाएगा. अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट या ऐड? नो, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. व्हाई? बिकॉज बोथ आर हैविंग द सेम साइंस. एंड subtracting second from first. So let us start. This is a into bx minus a square y equal to 0. अब इसको b से करेंगे, a into bx प्लस बी स्क्वायर वाई. अब b से करें तो क्या आएगा? ये a स्क्वायर b प्लस बी क्यूब. अंडरस्टैंड? अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देयर इज अ चेंज ऑफ साइंस. माइनस माइनस, ये पूरी टर्म के साथ आएगा माइनस. सो कैंसिल आउट. यहां पर देख क्या आएगा? माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई. ये कितना आएगा? 0 माइनस ऑफ दिस होल टर्म माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब. नाउ ट्राई टू टेक कॉमन. व्हाट इज कॉमन हेयर? माइनस वाई कॉमन है. क्या बच गया इधर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब यहां पर ध्यान से देखो, 0 तो चलो 0 माइनस सेम ही आएगा. यहां पर कॉमन आएगा माइनस बी क्यूब और बी कॉमन आ गया. क्या बच गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. अब वी गेट द वैल्यू ऑफ वाई. तो यहां पर माइनस एंड माइनस कैंसल आउट. सो स्टूडेंट्स, what is the value of y we get? b times a square plus b square upon, देखो बेटा y आएगा, ये टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी, a square plus b square. So this whole is cancel out. So in this way the value of y comes to be b. Now y की वैल्यू आ गई. Now when you put this value of y in either first or second, putting y is equal to b in first, तो क्या आएगा? bx माइनस a इंटू y. y क्या था हमारा? b था. सो इन दिस वे bx is equal to ab. अब what is the value of x? ab upon b. b and b cancel out. So in this way the value of x here comes to be a, the value of y comes to be b. So thus x is equal to a and y is equal to b is the
solution of given equations. Look at the next part, that is fourth part, question number 7. Now here the first equation, when you look at the first equation, the coefficient of x is clear, it is a minus b. The coefficient of y is a plus b, and this is the constant term. So we named it as equation first. Now here, now यहाँ पर how to find what is the coefficient of x and y? So what we do, we just write one more step. This a plus b is the coefficient of x. इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी को हम y से भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या आ गया, a प्लस बी टाइम्स x प्लस a प्लस बी टाइम्स y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो इससे हमें पता चल जाएगा कि नाउ दिस इक्वेशन इज नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब यहां पर है a माइनस बी, यहां पर है a प्लस बी, तो ये कैंसिल नहीं हो सकते. बट लुक here we have a plus b and here also we have a plus b. So what we can do, we can directly subtract them. So subtracting equation second from first, तो क्या आएगा यहाँ, a माइनस बी टाइम्स x प्लस a प्लस बी टाइम्स y is equal to a square minus 2ab minus b square, and यहाँ पर क्या आएगा, a plus b times x plus a plus b times y is equal to a square plus b square. अब क्योंकि साइन सेम थे तो हमको सब्ट्रैक्ट करना है, we subtract them. बट याद रखना यहाँ पर दिस माइनस विद दिस होल टर्म, इस पूरी टर्म के साथ माइनस है, इट इज नॉट विथ ओनली a square. So this whole is cancel out. क्या बच जाएगा यहाँ, a minus b times x minus of a plus b times x. यहाँ पर क्या आएगा, a square minus 2ab minus b square minus of this whole term a square plus b square. Now taking common, what is common, x is common, तो a minus b minus of a minus of b. क्योंकि जब हमने x कॉमन ले लिया, here we left with a minus b, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a प्लस b. जब खोलेंगे तो क्या आएगा, a minus b आ जाएगा. नाउ इक्वल्स टू here also a square minus 2ab minus b square minus a square minus b square. तो look here, this cancel out. अब क्या बच जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए माइनस b प्लस a एंड माइनस ए कैंसिल आउट. माइनस बी कितना होता है, माइनस 2b टाइम्स x. यहां पर क्या आ जाएगा, इफ यू टेक माइनस कॉमन, यहां पर 2ab प्लस माइनस बी स्क्वायर वैसे माइनस 2b स्क्वायर होता है. हमने अच्छा अगर माइनस कॉमन नहीं लेते हैं तो क्या आएगा, यू गेट माइनस एंड माइनस 2b स्क्वायर. सो व्हाट इज कॉमन हियर, माइनस इज कॉमन, 2 इज कॉमन एंड b इज कॉमन. यहाँ आ जाएगा a प्लस b, सो इट इज माइनस ऑफ 2bx. माइनस माइनस कैंसल, 2 एंड 2 कैंसल, b एंड b कैंसल. तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस b. सो हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ a प्लस b. अब इस x की वैल्यू को चाहे आप फर्स्ट पे पुट कर दो, चाहे आप सेकेंड पे पुट कर दो, इट्स योर चॉइस. सो व्हाट वी डू नाउ, पुटिंग x is equal to a plus b in first. So what we get, a minus b times a plus b, x आ गया, plus a plus b times y is equal to a square minus b square. Okay students, now we all know that a minus b into a plus b क्या होता है, a square minus b square. This is our identity. Plus a plus b times y is equal to a square minus 2ab minus b square. Now shift these terms to that side.
it will become a plus b times y, a square minus 2ab minus a square. This plus a square becomes minus a square, this minus become plus b square. अब देखिए कुछ कैंसिल होता है, देखिए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट. सो व्हाट वी गेट, द वैल्यू ऑफ y कम्स टू बी माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी. सो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे जो सॉल्यूशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू a प्लस बी एंड y इज इक्वल टू माइनस 2ab upon a plus b is the solution of given equation. तो बच्चों करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल सिंप्लीफाई करना है, बट ध्यान से, बिकॉज ड्यूरिंग दीज वेरिएबल्स साइंस में अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी तो योर सॉल्यूशन मस्ट बी रॉन्ग देन. ओके, नाउ स्टूडेंट दिस फिफ्थ पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, हेयर द कोफिशिएंट्स आर वेरी बिग. इट इज इन 500, 300, 152, 378, बड़े बड़े नंबर्स हैं. तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी. तो फॉर पर्टिकुलर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जहां पर कोफिशिएंट्स हमारे सेम हो बट उनके साइंस अलग हो और कोफिशिएंट्स जो हो अलग वेरिएबल्स में, जैसे here the coefficient of x is 152 and here the coefficient of y is 152. कोफिशिएंट सेम है बट उनके साथ वेरिएबल अलग हैं. तो जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो उनमें क्या करना है, सिंपल स्टेप, एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो और एक बार दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लो. अंडरस्टैंड. जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस हो जहां पर वेरिएबल्स डिफरेंट हो लेकिन वैल्यू सेम हो, वेरिएबल्स डिफरेंट वैल्यूज, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम आ रहे हैं, तो क्या किया हमने, पहले हम इनको ऐड कर लेंगे. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड. याद रखना बेटा, इनमें सम में नहीं करेंगे ऐसा ही, ठीक है. अब क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड. जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 152x माइनस 378y माइनस 74 माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604. याद रखना हमने एक बार ऐड करना और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है. अब जब ऐड करेंगे देयर इज नो चेंज ऑफ साइन, सो व्हाट यू गेट, सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इट यू विल गेट माइनस में हमारा आंसर आएगा माइनस 622 माइनस 226 क्या आ गया x, यहां पर क्या आएगा माइनस 226 y. जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, इनको ऐड करेंगे 8 7, इट इज 678. नाउ बच्चों अब आपने अब आगे देखना है कि हाउ कैन यू मूव फर्दर. सो देखिए व्हाट इज कॉमन इन दिस, माइनस 226 कॉमन, तो x प्लस वाई माइनस 678. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 678 अपॉन माइनस 226. सो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गया तो 226 कितने का होता है, 3 तो स्टूडेंट देखिए हमारी इक्वेशन छोटी इक्वेशन आ गई. कहां पर हमारी बिगर टर्म्स थी, नाउ यू हैव कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y एज 1 and 1, ठीक है. उस तरह से अब एक बार हमने इनको सब्ट्रैक्ट भी करना है. नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, 152x माइनस 378y is equal to minus 74, then minus 378x plus 152y is equal to minus 604. बट इस टाइम हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब हम तो साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज. अब दिस 152 प्लस 378 कितना आएगा, 530x माइनस 0 3 530y. इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 530. अब देखिए यहां पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, वी कैन टेक 530 कॉमन, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 530.
सो व्हाट यू हैव, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। अब आप सोचेंगे कि हमारा आंसर तो निकला नहीं, बट जो हमारी कैलकुलेशन है वो छोटी हो गई ना। पहले हमारी कोफिशिएंट्स जो थे वो बड़े थे इन हंड्रेड्स, नाउ इट इज इन दोनों के कोफिशिएंट 1 ही है। अब क्या करेंगे हम, अब इनको दोबारा सॉल्व करेंगे। नाउ एडिंग इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ। नाउ अब हम उनको नहीं करेंगे बिकॉज हमारी इक्वेशन ऑलरेडी एक्स और वाई में ही है। जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 था एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 था। ऐड करने में इसे कट गया, बट वी हैव 2x इज इक्वल टू 4। सो व्हाट इज x, 2। इस तरह से x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 2, चाहे तो आप इसको फर्स्ट और सेकंड में भी पुट कर सकते हो आप, बट हम पुट क्या करेंगे इसमें, इनमें, क्योंकि हमने सॉल्व थर्ड और फोर्थ को ही किया सिर्फ। सो पुट इन थर्ड, तो क्या आएगा, x प्लस वाई, x इज 2, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो व्हाट इज y, 3 माइनस 2 दैट इज 1। सो स्टूडेंट्स इस तरह से क्या हुआ, x की वैल्यू 2 आ गई। सो यू कैन से x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। आगे समझ। तो याद रखना बेटा, हर वो क्वेश्चंस जिनमें कोफिशिएंट्स सेम हो विथ डिफरेंट वेरिएबल्स, यहां पर भी 152, यहां भी 152, बट एक बार x एक बार y, यहां पर भी -378, यहां भी -378, बट एक बार विद x एंड नेक्स्ट टाइम विद y। तो ऐसे क्वेश्चन में एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, एक बार दोनों इक्वेशंस को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन आ जाएंगी। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दीज इक्वेशंस। Understand? Now, the last question of this exercise. Here, the quadrilateral is given, which is cyclic. Cyclic means the quadrilateral whose vertices lie on a circle. और हमें इनके 4 angles given दिए हैं. So we have to find out the angles of this cyclic quadrilateral. तो बेटा हमने ये property की थी in class 9th that the opposite angles of a cyclic quadrilaterals are supplementary, means opposite angle का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो वैसे तो हमारी इसमें हम 3 इक्वेशन बना सकते हैं, बट हमें 2 ही चाहिए। एक तरह से कर सकते हो आप, a प्लस सी इज 180, b प्लस डी भी 180 होता है, और एक हमें ये भी मालूम है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है, 360। सो जो भी आप चाहते हो प्रॉपर्टी यू कैन यूज। सो हियर in cyclic quadrilateral ABCD, angle A is 4y plus 20, angle B is minus 7x plus 5, angle C is minus 4x, and angle D is 3y minus 5. Now we know that हमें यहाँ पर गिवन नहीं दिया, बट हमें प्रॉपर्टी पता है। वी हैव ऑलरेडी डन दिस थ्योरम इन क्लास 9th, दैट इज वी नो दैट सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। जो ऑपोजिट एंगल होंगे उनका ही सम हमारा 180 आएगा। मतलब क्या हो गया, दैट इज एंगल ए का ऑपोजिट हो गया सी, 180 हो गया। अब देखेंगे वैल्यू क्या आती है। ए इज व्हाट, 4y प्लस 20, सी इज व्हाट, -4x इज इक्वल टू 180। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, -4x प्लस 4y, 20 को 1 शिफ्ट कर देंगे क्या बनेगा, 180 माइनस 20 कितना होता है, 160। नाउ वी कैन टेक 4 कॉमन, तो -x प्लस y इक्वल टू 160। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारी इक्वेशन क्या आ गई, 160/4 40 डिग्री, यानी कि -x प्लस y इज इक्वल टू 40। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कैसे आ जाएगी, सिमिलरली इनका सभी 180 है, सो वी कैन राइट सिमिलरली। बेटा सिमिलरली हम कब यूज करते हैं, जब हमारी एक ही प्रॉपर्टी यूज हो रही है दोनों जगह, यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। व्हाट,
that is angle B plus angle D is equal to 180. तो B कितना दिया है? -7x plus 5. It is given to us. D कितना दिया है? 3y minus 5 equals to 180. So -7x plus 3y, 5 से y कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो आप इसको 180 रहने दो, बिकॉज जब हम मेजरमेंट करेंगे तो आपको डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है. सो यू कैन राइट दिस एज सच. अब देखिए, अब यहाँ पर है -x, यहाँ पर है -7. अगर हम फर्स्ट को मल्टीप्लाई करें किससे? 7 के साथ, और सब्ट्रैक्ट कर दें. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 7, ठीक है, इसको फर्स्ट 7 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब दोनों क्या आएंगे? सेम आ गए. तो क्या करेंगे हम? एंड सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट. सो क्या आएगा इधर? -7x प्लस 7y इज इक्वल टू 7 इंटू 40, 280. ये क्या है? -7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180. नाउ वी हैव टू चेंज द साइंस. तो माइनस बिकम प्लस, प्लस बिकम माइनस, एंड प्लस बिकम माइनस. ये कैंसिल हो गए. व्हाट वी हैव? -4y -100. कितना आ गया? y इज इक्वल टू 100/4 इज 25. तो हमारी फिलहाल y की वैल्यू आ गई. नो पुट दिस वैल्यू y. पुटिंग y इज इक्वल टू 25 इन फर्स्ट. तो क्या आ गया? -x प्लस 25 इज इक्वल टू 40. सो -x इज इक्वल टू 40 minus 25. तो -x इज इक्वल टू -15. तो वैल्यू कैंसिल आउट, योर वैल्यू ऑफ x कम्स टू बी 15. अब x 15 है, y 25 है. अब हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर a, b, c और d में, एंड हेंस वी गेट द एंगल. सो देयरफॉर एंगल a कितना था हमारा? 4y plus 20. 4y plus 20. y is how much? 25. 25, 4 is 100. 100 plus 20 is 120 degree. एंगल डिग्री में होते हैं. नाउ एंगल B, how much? -7x plus 5. अब x की वैल्यू माइनस. नाउ अब बेटा इस तरह से देखो बेटा, एक्चुअली x की वैल्यू हमारी 15 थी ना, ये हमारी आनी थी -15, बिकॉज यहाँ देखिए 40 minus 25 is 15. तो -x 15 है, तो x कितना हो जाएगा? -15. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -15 हियर. प्लस 5 माइनस प्लस 7 इंटू 5 35, 105 प्लस 5 इज 110 डिग्री. अंडरस्टैंड? अब हम निकालेंगे एंगल C. What is angle C? Angle C is -4x. What is the value of x here? Now putting the value of x. What is x? X is -15. -4 into -15 is 60 degree. So इस तरह से एंगल 6C आ गया 60 डिग्री. Now एक बच गया हमारा कौन सा? एंगल D. And angle D is how much? 3y minus 5. बस आपने x और y की वैल्यू जब पुट करते जाओ. y, सो y की वैल्यू क्या थी हमारी? 25. 25 3 75 minus 5 is 70 डिग्री. तो बेटा आप चाहो तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो. कैसे? देखो, एंगल D की वैल्यू हमारी ये आ गई 70, C आ गया. एंगल B की वैल्यू हमारी क्या आ गई थी? 110. और एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी? 120. तो हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है. तो देखिए, A का ऑपोजिट क्या था? C. A और C का सम कितना आ रहा है? 180 आ रहा है. ठीक है. वैसे ही B और D का सम भी 180 आना चाहिए. 110 और 70, ये भी 180 आ गया. तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड देन द एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक कॉरिडोर. याद रखना बेटा, ये जो हमने प्रॉपर्टी यूज की है, दिस वन, दिस प्रॉपर्टी वी हैव डन इन अवर प्रीवियस क्लास, दैट इज क्लास 9th में हमारी ये थ्योरम थी इन द चैप्टर ऑफ सर्कल्स. I hope you all understand this. So with this, we finish with this unit.